ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے زینب؟ میں اور انس سے شادی؟ وہ اسے حیرت سے تکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ زینب نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ کیا خرابی ہے انس میں؟ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا خرابی؟ یہ پوچھو اس میں خوبی کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس انس لاشاری سے شادی پر آمادہ ہوگی؟ وہ غصے سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ تم نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا، کریکٹر جج کر لیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور وجہ سے اس کے ساتھ ہو، تمہیں معلوم نہ ہو۔ زینب اس کی خالہ زاد بیٹی تھی اور انس لاشاری اس کے ماموں کا بیٹا تھا۔ زینب کو انس پسند تھا، اس کی خواہش تھی انس اور لائبہ کی شادی ہو جائے۔ خاندان میں سب کے رشتے شادی منگنی ہو چکی تھی، بس لائبہ اور انس ہی رہ گئے تھے۔ مجھے اس کا کریکٹر جج کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے پتا ہے وہ آوارہ اور لوفر ہے، کسی بھی لڑکی کے چکر میں پڑ سکتا ہے۔ اسے لڑکی نہیں لڑکیاں پسند ہیں۔ لائبہ کا بس نہیں چل رہا تھا، انس نام کا ذکر ہی اس دنیا سے مٹا دے۔ تم پاگل ہو لائبہ، بہت اچھے انسان کو چند غلط فہمیوں میں آ کر جج کر رہی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات پر اب چڑھنے لگی تھی۔ لائبہ نے کندھے اچکائے کہ شکر تھا اس کے گھر میں ابھی تک کسی نے اس کی کزن سے متعلق بات نہیں کی تھی۔ نور کی شادی میں کیا پلان ہے تمہارا؟ ڈانڈیا کھیلیں گے؟ وہ مسکرا کر خاندان میں آنے والی شادی کا ذکر لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ریسٹورنٹ کے شور شرابے میں وہ دونوں آزادی سے وہاں بیٹھی کچھ دل کی باتیں تو کچھ اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ آج مائیوں تھی جس کی وجہ سے ساری لڑکیاں پیلے رنگ میں سورج مکھی کا پھول بنی ہوئی پھر رہی تھی۔ لائبہ نے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، آگے کی مانگ نکال کر بندیاں لگائی تھی۔ ہرے رنگ کی بندیاں اس کے چہرے پر دمک رہی تھی۔ لائبہ، کتنا میک اپ تھوپا ہوا ہے تم نے؟ اس کی ماں سر پر پہنچ کر اسے گھور رہی تھی۔ امی اتنا میک اپ کہاں ہے، بس فاؤنڈیشن اور لپسٹک کاجل ہی تو ہے۔ وہ اتنے دل سے تیار ہوئی تھی لیکن اس کی ماں کو ہمیشہ ہی اس کا میک اپ بہت زیادہ لگتا تھا۔ خالہ کیا ہو گیا ہے؟ اپنی لائبہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، ذرا دیکھیں تو۔ زینب نے آ کر بات سنبھالی اور اپنی خالہ کو بتانے لگی۔ لائبہ تھوڑے سے میک اپ میں بھی حسین ہی لگتی ہے، تم اس کی حمایت میں آ جایا کرو۔ وہ الٹا زینب کو جھڑکنے لگی۔ خالہ یہ بھی تو سوچے، کیا معلوم یہاں کوئی ہینڈسم سا لڑکا لائبہ کو پسند کر لے۔ وہ مسکرا کر بولی تو لائبہ نے اسے گھورا لیکن اس پر گھوری کا اثر تک نہ ہوا۔ ہاں کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو، بس خیر سے لائبہ کا رشتہ ہو جائے پھر اس کی شادی کا سوچیں گے۔ وہ اب لائبہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زینب لائبہ کا سڑا ہوا منہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ وہ اپنی ماں سے جان چھڑوا کر زینب کے پیچھے آئی اور ہاتھ میں دلہن کی ہلدی اٹھا لائی۔ زینب نے چھپنے کی کوشش کی اور اسی چکر میں انس لاشاری بیچ میں آ گیا اور ہلدی ساری اس کے سفید کرتے کو داغدار کر گئی۔ لائبہ اور زینب منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو بیوٹیفل، اس نے لائبہ اور زینب کو مسکرا کر کہا۔ لائبہ کے سر پر لگی اور تلوؤں پر بجھی، جبکہ زینب نے لائبہ کا سرخ غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر بات سنبھالی۔ لائبہ ہم چلتے ہیں یہاں سے، وہ انس سے مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی، جبکہ لائبہ ابھی تک اس کے بیوٹیفل کہنے پر غصے میں تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، لچا لفنگا، وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ زینب اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ سب کزنز مل کر ڈانڈیا کھیلنے لگی۔ لائبہ سب بھول بھار کر مزے سے سب کی نظروں کے حصار میں تھی۔ لمبے بال اس کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ وہ ارد گرد کے لوگوں کو بھولے سٹیپ کر رہی تھی۔ انس لاشاری اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ لائبہ آ کر سٹیج پر بیٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ تمیز نہیں ہے آپ کو، اس نے غصے سے کہتے دوسرے صوفے کی راہ لی۔ انس حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ ان کے درمیان اچھی خاصی جگہ تھی، تھوڑی سی نک چڑھی ہے۔ نور نے انس کو وضاحت دی تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ باقی کزنز کے ساتھ اس کا رویہ بالکل ٹھیک تھا، بس انس کے ساتھ اس کا رویہ کافی سخت اور الگ ہوتا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ لائبہ کو اس سے مسئلہ کیا ہے۔ مایوں اچھے سے اختتام ہوئی، بارات کا شور اٹھا۔
बारात में लाइबा जिद करके पार्लर से तैयार हुई थी। काले रंग का लहंगा पहने वो काफ़ी हसीन लग रही थी। उसकी अम्मा ने उसे अच्छी तरह सुनाई थी, लेकिन लाइबा पर कोई असर ना हुआ। उसकी निगाहें भटक भटक कर इसका तवाफ करती थीं। वो खुद को समझाता था कि वो लड़की उसके लिए नहीं है, लेकिन न जाने क्यों दिल उसी की तरफ देखने को कहता। इंग्लिश सॉन्ग्स लगाओ, अनस ने किसी कज़न को ऊंची आवाज़ में कहा। हम पाकिस्तानी हैं, हम तो अपनी ज़बान में गाने सुनेंगे। लाइबा की आवाज़ आई तो सारे कज़न्स दोनों को दिलचस्पी से देखने लगे। यहाँ तो अंग्रेज़ी गाने ही लगेंगे, या हम ये मान लें यहाँ की लड़कियों को इंग्लिश समझ नहीं आती। अंस की आवाज़ पर लाइबा पेचो ताप खाकर रह गई। हमें ये साबित भी नहीं करना कि हमें अंग्रेज़ी आती है कि नहीं, यहाँ हमारे गाने चलेंगे। ये लड़ाई संगीन होती जा रही थी। छोटी बहन समझकर लगा ले, उसकी पसंद के गाने। ज़ैनब ने बीच में मदाखलत करके मामला संभालना चाहा, बल्कि मामला और बिगड़ रहा था। मैं उसे बहन बनाऊंगा, अंस ने इतनी नापसंदीदगी से कहा था कि लाइबा ने मुट्ठी भींच ली। मैं आपको अपना मुलाजिम ना बनाऊं, भाई तो बहुत दूर की बात है। वो बालों को झटकते पीछे करते बोली, और अंस देख कर रह गया। तुम समझती क्या हो खुद को? वो इसे देखकर पूछ रहा था। लाइबा मुस्कुराई। लेडी डियाना। उसकी बात सुनकर सारे कज़न्स ने कह कहा लगाया। लेडी डाइन ज़्यादा सूट कर रहा है तुम पर। अंस की बात सुनकर एक और दफ़ा कह कहा गूंजा। वो दोनों स्टेज पर चढ़े, सबको एंटरटेन कर रहे थे। फिर आप ज़कूटा जिन हैं। लाइबा बहस में हार मानना नहीं चाहती थी। जब ज़कूटा जिन आता था तुम पैदा भी नहीं हुई थी बिलबतौड़ी। अंस लाशारी ने उसको गुस्से के सवा नेज़े पर पहुंचाया। यू, वो गाली देते देते रुकी थी। उसकी अम्मा ने आकर लाइबा को अपने साथ लिया। फाइटर मैदान छोड़कर भाग गई। अनस ने कंधे से ना नजर आने वाली मिट्टी झाड़ी। बस करो, बच्चे बन गए हो पूरे। अंस की माँ ने उसे भी झड़का। अब लाइबा को डांट पड़ेगी, वैसे आप ही उसके पीछे लगी रहती हैं। अंस की माँ लाइबा की मामी ने उसे घूरते हुए बोला। उसने यूं कंधे उचकाए कि उसकी बला से। शादी और वलीमा इख्तिताम हुआ। वलीमे में अंस ने लाइबा को ना देखने का अहद किया था, लेकिन उसे देखकर एक बार फिर इसका दिल डामाडोल हो गया। वो जब जब सामने आती थी अंस को सब कुछ भूल जाता था। लाइबा ने अलबत्ता एक दफ़ा देखकर उसे ज़ेरे लब काफ़ी बुरे अलकाबात से नवाजा था। वलीमे में लाइबा की बिंदिया कहीं गिर गई थी। वो इसकी पसंदीदा थी, इसी वजह से उसने ज़ैनब से काफ़ी ढूंढवाया, लेकिन नहीं मिला। वलीमे के बाद सब कुछ रूटीन पर आ गया। अचानक एक दिन मामू और मामी की फैमिली उनके घर चली आई। अंस भी साथ था। बाल जेल से सेट किए हुए थे, गले में टाई और पेंट कोट में वो वजीह लग रहा था, लेकिन लाइबा को वो कभी अच्छा नहीं लगा था। लाइबा भी अपनी दोस्त के घर से लौटी थी कि मामू और मामी को सलाम करके बैठ गई। अंस उसकी जानिब ही देख रहा था। हम यहाँ लाइबा को अपनी बेटी बनाने आए हैं। मामू ने अपनी बहन की जानिब देखकर बात का आगाज़ किया। लाइबा को हैरत से आंखें फटी रह गई। उसकी अम्मा ने मुस्कुराकर अपने शौहर की जानिब देखा। वो इस रिश्ते से खुश हुए थे। हाँ क्यों नहीं भाभी, लाइबा आप ही की बच्ची है। उसकी माँ ने मुस्कुराकर लाइबा को देखते हुए कहा, और लाइबा फौरन से उठ खड़ी हुई। मामी, पेश की माजरत, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अंस में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं जिसकी बिना पर मैं इससे शादी करूं, बल्कि ये तो आवारा, लफंगा, लोफर, निकम्मों की लिस्ट में आता है। वो अंस लाशारी को देखते हुए बोल रही थी। उसकी मुट्ठियां सख्ती से बंद होने लगी। उसका दिल किया इस लड़की को सबके सामने वैसे ही सबक सिखाए जैसे उसने अंस लाशारी की सबके सामने खड़े होकर इंसल्ट की थी। तुम्हें ये सारी खराबियां अंस में नजर आती हैं? मामी की हैरत से आंखें खुल गई। उन्हें यकीन नहीं आया अंस को कोई ऐसा भी कह सकता है, वरना वो शरीफ लोगों के लिस्ट में आता था और हर कोई तारीफ करता था। न जाने लाइबा ने क्या सोचकर उसे इतने बुरे अलकाबात से नवाजा था। बिल्कुल, मुझे इनमें कुछ अच्छी खसलत नजर नहीं आती, लाइबा ने ड्राइंग रूम से निकलते हुए कहा। उसके अम्मा अब्बा भी हक्का बक्का बैठे रह गए। मामू मामी का चेहरा उतर गया था। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था।
अंस लाशारी को वो मनाकर वहां लाए थे। वो कह रहा था कुछ वक्त दें, अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्हें जल्दी थी। लाइबा को शादी में काफ़ी औरतों और लड़कों ने पसंद किया था। वो नहीं चाहती थी कि लाइबा की शादी कहीं और हो। अंस से ही करवाने के उन्होंने ख्वाब देखे थे। जब अंस लाशारी और उसके माँ अब्बा घर लौटे तो अम्मा खूब दिल खोल कर रोईं। उन्हें लाइबा का यूं मुंह पर इनकार करना बहुत बुरा लगा था। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। उसके बाबा और अनस उन्हें संभाल रहे थे। तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी होगी लाइबा, वो गुस्से से अपनी माँ के आंसू साफ करते सोच रहा था। तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। इज्जत की ज़बान तुम्हें समझ नहीं आती। वो सोचों में डूबा हुआ था। बाप का मुरझाया हुआ और माँ का रोता चेहरा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रात भी ठीक से सो नहीं सका था। बार बार लाइबा की हकारत भरी आवाज़ कान में गूंज रही थी। वो गुस्से से उठा और स्लीपिंग पिल्स खाकर सोने की कोशिश करने लगा। इस रिश्ते वाली बात पर लाइबा को अम्मा, अब्बा और जिस को मालूम होता रहा सबसे डांट पड़ी। रिश्ता पसंद नहीं था, इनकार काफ़ी था, इतना कुछ सुनाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन लाइबा पर कोई असर ना हुआ। वो मज़े से सब कुछ भुलाए ट्रिप पर चली गई। पीछे उसका रिश्ता आया जिसे लाइबा से पूछे बिना उसके माँ बाप ने कबूल कर लिया, वरना वो शायद इस बार भी इनकार कर देती। वो ट्रिप से वापस आई तो ज़ैनब ने उसके मुंह में मिठाई दी और बताया कि उसका रिश्ता तय हो गया है। उसे हैरत हुई, लेकिन फिर बात समझ आने पर गुस्सा भी बहुत आया। लाइबा के आने पर वो लड़के वाले दोबारा आए थे। लाइबा ने उस लड़के से भी बात की थी। लाइबा को वो काफ़ी पसंद आया था। उसका बोलने का अंदाज और उसकी सोच जानकर लाइबा को अच्छा लगा। वो इस रिश्ते पर मुतमईन थी। बात पक्की होने के बाद जब सबके घरों में मिठाई गई तो अंस को भी मालूम हुआ कि लाइबा की बात पक्की हो गई है। 4 महीने में शादी है। अंस सुनकर मुस्कुराने लगा। इससे अच्छा मौका क्या होगा लाइबा से बदला लेने का। वो मज़े से मिठाई खाकर कमरे में आ गया। ज़ैनब ने लाइबा और उस लड़के की तस्वीर स्टेटस पर लगाकर मुबारकबाद दी हुई थी। अंस ने उसे और ख़ुद को कंपेयर किया। अंस को लगा वो इससे ज़्यादा बेहतर है। लाइबा को अक्सर उसका मंगेतर बाहर खाने खिलाना ले जाता और किसी को एतराज़ भी नहीं होता था। 2-4 बार तो अनस ने भी दोनों को साथ देखा था। उस दिन घर में सब जमा थे। उसकी शादी की तारीख रखी जा रही थी। लाइबा बेइंतहा खुश थी। अनस समेत सारे कज़न्स वहाँ मौजूद थे और लाइबा छत पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। बाल हवा में उड़ते मंजर को खूबसूरत बना रहा था। पीछे से उसे अनस की आवाज़ सुनाई दी, मुबारक हो। वो चौंक कर पलटी। वो आज भी हल्की से मेकअप में खिल रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने अंस को देखते ही गुस्सा किया। लुच्चा लफंगा, आवारा हूँ, बस समझ लो वही करने आया हूँ जो हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। क्या मतलब? वो परेशानी से इर्द गिर्द देखते पूछ रही थी। मतलब कि आज शादी की तारीख तय हो चुकी है। कैसा हो तुम इस शादी से इनकार करके अपने घर वालों को जलील कर दो। वो जेब में हाथ डाले खुश अखलाकी से न जाने कैसी बात कह रहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो गुस्से से चीखी थी। आवाज़ नीची लाइबा। वो गुस्से से आगे बढ़ा। उसने लाइबा को करीब करते उसकी आंखों में देखा। ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। अगर शादी का सोचा भी तो याद रखना मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसे डरा धमका रहा था और लाइबा के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। उसकी सारी अकड़ एक लम्हे में गायब हो चुकी थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो आपसे तुम पर आ गई थी। लाइबा की आंखों में खौफ देखकर अनस मुस्कुरा दिया। क्योंकि मेरी तुमने सबके सामने तजलील की थी। मेरी माँ कितने दिन तक रोती रही। मेरे बाप के चेहरे पर फैली रंजीदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। इन सब की कीमत तुम्हें चुकानी होगी लाइबा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं तुमसे ज़बरदस्ती निकाह कर लूँगा। शादी वाले दिन अगवा करा लूँगा। और याद रखना, अभी का रिश्ता टूटना बारात वापस जाने से बेहतर होगा। वो आंखों में लहू लिए उसे सही तरह से डरा धमका चुका था। लाइबा ने होठों पर जबान फेर कर आंखों में नमी लेकर उसे देखा। ये तस्वीर देखो। वो लाइबा और अपनी शादी की तस्वीर दिखाने लगा।
जब नूर की शादी में वो दोनों इंतहाई करीब आए थे। 2-4 जगह वो दोनों लड़ रहे थे, लेकिन दिखने में यूं लग रहा था कोई रोमांटिक बात चल रही हो। ये तुम्हारे मंगेतर को भेजूंगा, ये रिश्ता टूट जाएगा। तुम्हें पता है, मर्द जितनी औरतों को लेकर फिरे, लेकिन अपनी औरत पर किसी गैर मर्द की निगाह बर्दाश्त नहीं करते। वो उसको पीछे धकेल कर बोला, तुम ये सब बिल्कुल नहीं करोगे। वो गुस्से में आ गई और अंस का गिरेबान पकड़ लिया। लाइबा डार्लिंग, जिस दिन मेरी इंसल्ट हुई थी उस दिन ये चैलेंज कबूल किया था। अब उसकी कीमत अदा करने का वक्त है, तो मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना। वैसे भी शादी में अभी 2 माह है, आराम से तुम कर लोगी। वैसे भी तुम इंसल्ट करने में माहिर हो। वो मुस्कुराकर उसका गाल थपक कर चला गया। पीछे लाइबा ज़मीन पर बैठ गई। ये अंश क्या करने वाला था? उसकी आंखें झूठ नहीं कह रही थी। वो सच में बदले की आग में झुलस रहा था। लाइबा की तबाही उस बदले का नतीजा ठहरी थी। लाइबा अपने ससुराल वालों को अलविदा करने भी नहीं आई थी। उसने सर दर्द का बहाना करके खुद को कमरे में बंद कर लिया। अंस के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट मचली थी। वो लाइबा को सीधे रास्ते से कबूल कर रहा था, गलत रास्ते पर लाइबा ने डाला था। अंस उस रात सुकून से सोया और लाइबा की आंखों में अपने लिए डर देखकर उसे इत्मीनान हुआ था। लाइबा के घर वाले शादी की तैयारियां कर रहे थे और लाइबा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंस की बात मान ले, ये अंस की बात हंसी में उड़ा दे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन नहीं, दोनों सूरतों में बेइज्जती उसकी ज़ात की होनी थी। ठुकराए हुए रिश्ते को अपनाना और आए हुए रिश्ते को ठुकरा देना, या फिर अंस के साथ निकाह करके अपनी शादी में पहुंचकर ये बताना कि उसने अंस से निकाह कर लिया है। कौन सा रास्ता ज़्यादा आसान या मुश्किल था? वो सोच सोच कर थक गई, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अंस उसे रोज़ कॉल्स और मैसेजेस करके याद दिलाता कि अब उसके पास कितना वक्त है। ऐसे करते करते माइयों का दिन आ गया। उसका मंगेतर भी वहाँ मौजूद था। उनकी माइयों साथ होना तय पाई थी। अंस गुस्से से आज लाइबा को सबक सिखाने की सोच कर आया था। फिर भले ही वो ख़ानदान में बदनाम हो जाए, उसे कोई फिक्र नहीं थी। वो कमरे में तैयार हो रही थी। सब मेहमान और घर वाले नीचे गार्डन में हंसी मजाक कर रहे थे। उसके हाथ लरज रहे थे। अनस को सोच सोच कर वो पागल हो रही थी। वो अचानक कमरे में आया। इसे देखकर लाइबा का सांस रुक गया और दिल बंद होने लगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे चैलेंज किया। अब देखो, तुम मुकम्मल मेरे रहमो करम पर हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, और अब मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं। वो उसकी जानिब आते हुए बोला। लाइबा ने खिड़की की जानिब भागना चाहा। आज नहीं। वो लाइबा का हाथ थामकर उसे अपने कैद में लिए बेड पर फेंकने लगा तो लाइबा खौफ से कांपने लगी। अंस ने अपनी शर्ट के बटन खोले। लाइबा ने दिल से दुआ की कि कोई आ जाए और उसे बचा ले, लेकिन इतना तेज़ म्यूज़िक और कमरा लॉक होने की वजह से कौन आता? लड़के वालों ने 10 बजे आना था। फिर सारी रात फंक्शन होता। अभी महज 8 बजे थे। उसके कमरे में अभी कोई नहीं आएगा। वो रो रही थी। अंस लाशारी अपनी शर्ट उतार चुका था। लाइबा ने उसके कंधे पर नाखून गाड़े। मैं तुमसे शादी करूंगी, वो आंखें मींचते हुए बोली तो अंस मुस्कुराने लगा। प्लीज़ मुझे टच मत करो, वो दूर होती हुई बोली। लड़के वाले आ जाएं, तुम बाहर जाकर कहोगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और ये रिश्ता तुम्हें मंजूर नहीं है। वो वापस अपनी शर्ट पहनते हुए बोला तो लाइबा ने गहरे गहरे सांस लिए। ये मुश्किल है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। अंस के कान और दिल अब उसकी तरफ से बंद हो चुके थे। अब कुछ नहीं हो सकता, वो मुस्कुराकर बोला। अगर आज मायूं हो गई तो याद रखना, आज की रात यहाँ से ही तुमसे अपनी कीमत वसूल करूँगा। वो उसकी आंखों में खौफ देखते हुए पीछे हटा और कमरे से चला गया। लाइबा फूट फूट कर रो दी। घर वालों को जिल्लत देना मौत से बेहतर था, लेकिन ये भी तो जिल्लत ही थी। वो 9:30 बजे सबके कमरे में आने पर बाहर आई। उसे दुपट्टे के साए में लाया गया। मुर्दासा चेहरा जहाँ खुशी की कोई रमक नहीं थी। अंस लाशारी उसे देख रहा था। दोनों की निगाहें मिली। लाइबा ने निगाह चुरा ली।
वो अपने मंगेतर के साथ झूले पर बैठी कि अंश उसके पास आया। रस्म से पहले पहले, वरना याद रखना जो अभी नहीं किया वो होकर रहेगा। उसकी बात सुनकर रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। लाइबा ने हिम्मत जमा की और स्पीकर के करीब रखा माइक उठा लिया। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सब उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराकर पलटे। अंश अब संजीदा था। मैं अंश लाशारी से मोहब्बत करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे अब अंदाज़ा हुआ कि मैं जिससे शादी करने वाली हूँ उससे मुझे मोहब्बत है, ना कोई पसंद। मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। वो कहकर माइक रखते बिना किसी की तरफ देखे सीधा अंदर की जानिब भाग गई। अंश लाशारी के लब ये सुनकर मुस्कुराए नहीं थे, सब हक्का बक्का खड़े रह गए। वो लड़का उठा और जोर से झूले को लात मारी। इतनी बड़ी महफिल में उस लड़की ने सबके सामने इंसल्ट की थी। उसके माँ बाप भी लाइबा के माँ बाप को अच्छी खासी सुनाकर चले गए। ज़ैनब होश में आई और लाइबा के पीछे भागी। लाइबा, दरवाज़ा खोलो। ये सब क्या है? तुमने शादी को खेल समझ रखा है। कभी किसी से शादी तो कभी किसी से इनकार। ज़ैनब गुस्से से दरवाज़ा पीट रही थी। लाइबा अंदर बिस्तर में मुंह दिए रो रही थी। इससे कहो बाहर आए और अनस से निकाह करके यहाँ से दफा हो जाए। पहले अंश को ठुकरा दिया और अब उसी से शादी के लिए मर रही है। किसी की इज्जत की परवाह है इसे? उसे कहो नीचे मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। उसके अब्बा ने अभी निकाह का हुक्म देते रुखसती का कहा। उसकी माँ बाहर खड़ी आंसू साफ करते हुए गुस्से से बोल रही थी। ज़ैनब ने दोबारा दरवाज़ा बजाया। इस बार उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसकी माँ ने सीधा उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तुमने अपने साथ साथ हमारी इज्जत भी 2 कौड़ी की कर दी लाइबा। अब हमें कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। वो इसका हाथ थामे नीचे ले आई। रोया चेहरा और बिखरा हुलिया। इसी हुलिये में उसका निकाह हुआ। वो मुर्दों की तरह बैठी रही। रुखसती पर सबने रोना तक मुनासिब नहीं समझा और ना ही कोई रुखसती में आया। सब निकाह के बाद अंदर घर में चले गए। अंश ने उसे उठाया और गाड़ी में बिठा दिया। जब इससे ही शादी करनी थी, इतना तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी? आबी और भाई को भी रुस्वा किया और अपनी जगह साई भी करवाई सो करवाई। मामी और मामू अलग गाड़ी में थे। वो दोनों लाइबा की हरकत पर बहुत नाला थे और मुसलसल बड़बड़ा रहे थे। अंश ने बेजान बैठी लाइबा को घर पहुंचकर बाहर निकाला। तुम देख लेना क्या करना है, मैं थक गई हूँ आज के तमाशे से। वो अंश को कहकर लाइबा पर गहरी निगाह डालकर अंदर चली गई। मामू भी उनके पीछे ही चले गए। लाइबा को अंश ने कलाई से थामा और घसीट कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया। तुम्हें पता है लुच्चे लफंगे कैसे होते हैं? वो उसके करीब आते हुए बोला तो लाइबा ने उसकी जानिब निगाह की। तुम्हारे जैसे गिरी हुई हरकत करने वाले, वो गुस्से से बोली तो अंश ने हंसकर उसे देखा। जलील हो गई हो लेकिन अकड़ अब भी बाकी है। वो उसकी जानिब आते हुए बोला, तुमने आज जो कुछ भी किया उससे साबित हो गया है कि मैं सच्ची थी। मेरी हर एक बात सच्ची थी। तुम लोफर हो, लड़कियों की इज्जत से खेलने वाले। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। अब उसके पास गंवाने को कुछ भी नहीं था। जो था वो यहाँ आने से पहले चला गया था। तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ क्यों है? वो उसे दीवार से लगाते हुए उसके माथे पर बिखरे बाल अपनी उंगली से पीछे करते हुए पूछ रहा था। अकड़ नहीं है, बस मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ मुनासिब रहती हैं। वो थूक निकलते हुए बोली। इसका करीब आना लाइबा को अनकंफर्टेबल कर रहा था। सीरियसली? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। वैसे हमारी आज की रात के लिए यहाँ कोई सजावट ही नहीं। वो पुरसोच नज़रों से कमरे को देख रहा था। लाइबा का सांस रुकने लगा। तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। वो टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट से छुरी उठा चुकी थी और अपनी कलाई पर रख चुकी थी। तुम पागल हो? वो करीब आने लगा। पहले कहो कि तुम मुझे टच नहीं करोगे वरना मैं अपनी कलाई काट लूँगी। वो गुस्से से फिंकारी। उसे रह रहकर आज का लगा हुआ तमाशा, माँ का थप्पड़ और बाप का निगाह उठाकर ना देखना याद आ रहा था। ठीक है, कुछ नहीं करूँगा। वो हाथ खड़े करते हुए बोला।
ورنہ اس کی آنکھیں بتانے کو کافی تھی کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ انس بھی تو آج آخری حد پار کرنے والا تھا۔ دور رہو مجھ سے، گھن آتی ہے مجھے تم سے، وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ انس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو، اماں ابا سن لیں گے، وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ رونے کے سبب آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھیں، کاجل گالوں پر پھیل گیا تھا، اس کا وجود انس کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ الماری میں سے کوئی ڈریس نکالو اور چینج کرو، وہ غصے سے اسے چھوڑ کر بولا۔ اگر وہ اس کے ساتھ پروپوزل پر آ جاتی تو وہ دنیا کی خوش قسمت لڑکی اسے محسوس کرواتا، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں تھی، لیکن دل، وہ لمبی سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ بنا کپڑے تبدیل کیے بیڈ پر بیٹھ گئی، ہاتھ میں ابھی بھی سیفٹی ہتھیار تھا۔ اسے انس پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ لمبی سانس بھر کر خود ہی چینج کرنے چلا گیا۔ شاور لے کر باہر آیا تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس کے بیڈ پر بیٹھنے پر غصے سے اسے دیکھا۔ سامنے صوفے پر جاؤ، چھری دکھاتی اسے اشارہ کر رہی تھی۔ انس نے بنا کچھ کہے صوفے کی راہ لی۔ لمبا چوڑا انس صوفے پر غیر آرام دے رہا، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ لائبہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اچانک سے سو گئی۔ انس نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور لائٹس آف کر دی۔ صبح ڈرائیور کے ہاتھ لائبہ کی اماں نے سامان بھیج دیا تھا، اور لڑکے والوں کے گھر جو سامان گیا تھا وہ بھی آ گیا تھا، وہ بھی لائبہ کو پہنچا دیا گیا۔ وہ ناشتے کے وقت کمرے سے باہر نہیں آئی۔ انس لمبی سانس لے کر خود ہی ٹرے تیار کر کے کمرے میں لے آیا۔ وہ اٹھی ہوئی تھی لیکن بستر سے نہیں نکل رہی تھی۔ انس نے ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھی۔ لائبہ ناشتہ کرو، وہ اسے پکارنے لگا اور آفس کے لیے تیار بھی ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، وہ غصے سے بول کر کمفرٹر میں گھس گئی۔ ضد مت کرو، اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، جلدی سے باہر آؤ، وہ دوبارہ بولتے جلدی سے تیار ہونے لگا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کرنا تو نہیں کرنا، شادی کرنی تھی مجھ سے، کر لی، اب کیا چاہیے؟ وہ غصے سے چیخنے لگی۔ جو چاہیے وہ اب بھی نہیں ملا۔ اس کی سنجیدہ گفتگو پر لائبہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جب بات سمجھ آئی تو وہ اسے لچا لفنگا اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگی۔ انس نے سن کر محض لب بھینچ لیے۔ ابھی اس کے پاس بحث کا بالکل وقت نہیں تھا۔ ناشتہ یہاں رکھا ہے، کر لینا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ لائبہ نے غصے سے کمفرٹر کو لات ماری جو کہ بیڈ سے نیچے گر گیا۔ لائبہ ناشتے کو دیکھتی رہی، لیکن وہ رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے وہ 3 گھنٹے بعد ناشتہ کر رہی تھی۔ انس نے اسے کال کی۔ اس نے انس کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ اس نے واٹس ایپ پر میسج کیا، وہاں سے بھی بلاک کر دیا۔ اس نے میلز کی، وہ وہاں سے بھی بلاک ہو گیا۔ اپنی ماں کے نمبر پر کال کر کے کہا کہ لائبہ سے بات کروائیں۔ انہوں نے نوکرانی کے ہاتھ اس کے کمرے میں موبائل بھیج دیا۔ کیا مصیبت ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے سے چٹخ کی گئی۔ سب جگہ سے بلاک کر چکی ہو، اب کیا یوٹیوب پر چینل بنا کر بات کروں؟ وہ بھی غصہ ہوا، کب سے اسے کالز کر رہا تھا اور وہ بلاک کیے جا رہی تھی۔ تم انہی کاموں میں اچھے ہو، اسی لیے یہ بھی کر لو، میں چینل بھی بلاک کروں گی، سٹرائک بھی ماروں گی، وہ غصے سے لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ لائبہ بس میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ناشتہ کیا؟ وہ سنجیدگی سے غصے کو بالائے طاق رکھ کر پوچھنے لگا۔ اسے لائبہ کی فکر ہو رہی تھی، اس کا غصہ بجا تھا۔ اس نے جو لائبہ سے کروایا تھا اس کے بعد اس کا یہ ری ایکشن فطری تھا۔ وہ ان سب میں لائبہ کی صحت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے بے چین ہو گیا۔ کھا لیا ہے بھائی، تم سے غصہ ہوں اسی لیے زیادہ کھانا کھاؤں گی، تم سے مقابلے کے لیے انرجی چاہیے، وہ غصے سے بول کر فون نوکرانی کو دے آئی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ کپڑے اس نے بدل لیے تھے۔ انس کو آتے آتے دیر ہو گئی اور لائبہ جان پوچھ کر سوتی بن گئی۔ وہ کمرے میں آیا، لائٹس آن کیے بنا سب کام کرتا لائبہ کے پاس آیا۔ اس کی کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر بکھری اس کی نیند خراب کر رہی تھی۔ انس نے انگلی سے لٹ پیچھے کی تو لائبہ اٹھ گئی۔ میری نیند کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ وہ گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیوی ہو، جو بھی کروں گا ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا،
उसे तो तुम भी नहीं रोक सकती हो। वो संजीदगी से कहकर पलट गया। लाइबा ने उसे उकसाने का इरादा तर्क किया, वरना वो उसके गले में ही आ जाता। वो पहले शर्टलेस सोता था, अब लाइबा के आ जाने पर पहन कर सोने लगा। लेकिन आधी रात में ही उसने उतार फेंकी। लाइबा देखकर डर गई, कहीं वो उसके करीब आने का प्लान ना कर रहा हो, लेकिन वो सोफे पर ही लेट गया। लाइबा ने सुकून का सांस लिया। उसे घर जाने पर पाबंदी थी। जब जैसा भी था, अनस का घर ही उसका था। 2 दिन कमरे में गुजार कर वो खुद ही बाहर आ गई। अंश लाशारी ने ही उसे कुछ कहने से मना किया था, वरना वो उसके माँ बाप से भी बदतमीजी से गुरेज नहीं करती। अंश खुद से बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन माँ बाप से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ज़ैनब ने अंश के घर का चक्कर लगाया। लाइबा ने उसे सारी बात बताई तो वो हैरान हो गई। अंश इस बात का बदला ऐसे भी ले सकता था? ज़ैनब ने नफ़ी में सर हिलाया। वो मोहब्बत के काबिल ही नहीं है ज़ैनब। तुम कहती थी उसका रिश्ता आए तो कबूल करना। देखो इनकार का बदला कैसे लिया है। वो रोती हुई बोली तो ज़ैनब ने उसे गले से लगा लिया और उसे तसल्ली देती रही। लाइबा जो भी है वो अब तुम्हारा शौहर है। इस कमरे की बातें बाहर मत निकलने देना। वैसे भी तुम्हारी काफ़ी जग हसाई हो गई है, अब कुछ भी करने से गुरेज करना। ज़ैनब ने उसे समझाया। लाइबा मुसलसल रो रही थी। मैं कभी उसे खुद के करीब नहीं आने दूंगी, वो रोती हुई बोली। अंश के कदम दरवाजे पर जम गए। लाइबा बच्ची ना बनो, शौहर है वो तुम्हारा। ज़ैनब ने उसे गुस्से से देखकर कहा। शौहर? मेरी इज्जत उसी दिन चली जाती ज़ैनब, जिस दिन उसने मुझे धमकी देते हुए करीब आने की कोशिश की थी। तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है? वो सच में अच्छा इंसान नहीं। न जाने कितनी लड़कियों के करीब जा चुका होगा। वो उसकी बदगुमानी पर हैरान ही रह गया। लाइबा उसे इतना गिरा हुआ समझती थी कि वो लड़कियों के करीब जाता था। जो भी हो लाइबा, कोशिश करो इस शादी को निभाओ, ज़ैनब ने उठते हुए कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लाइबा को कैसे समझाए। जो हुआ वो भूलकर आगे बढ़ जाए। अगर ये कहती तो ज़रूर ज़ैनब की बॉडी ही यहाँ से जानी थी। वो चलकर बिल्कुल नहीं जा सकती थी। अंश कमरे से दूर हुआ तो ज़ैनब चली गई। वो कमरे में आया। लाइबा ने खामोशी से उसे घूरा। अंश बहुत खामोश था। कोई शोखी भरा जुमला नहीं कसा, ना ही कोई बात की। वो उसके तेवर देखकर लब भेंच गई। उसकी मामी भी ठीक से बात नहीं करती थी। मामू से इतनी बात होती नहीं थी और अंश ने भी मुंह में गुड़ रख लिया था। रात में वो सोफे पर बैठा कोई काम करता लैपटॉप की जानिब मुतवज्जो था। लाइबा की निगाहें उस पर जमी हुई थी। लुच्चा लफंगा, खैर लड़कियों के साथ कैसे हंसकर बातें करता है। वो गुस्से से सोचने लगी। उस दिन भी रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठा बातें मटका रहा था। वो एक दिन रेस्टोरेंट गई थी और वहाँ अंश बैठा लड़की के साथ बातें कर रहा था। वो जब भी उसे देखती वो किसी न किसी लड़की के साथ ही होता था। यूनिवर्सिटी दौर में भी उसकी काफ़ी सारी लड़कियों से दोस्ती थी। अक्सर गैदरिंग में वो उन्हें भी लाता। लाइबा को बहुत पहले से वो नापसंद था। उसका लड़कियों से हंसकर बात करना और उन्हें सर पर चढ़ाना इसे पसंद नहीं था। अंश ने लैपटॉप बंद करके गहरी सांस ली और लाइबा की जानिब देखा तो वो इसे ही देख रही थी, लेकिन शायद कुछ सोच रही थी, इसीलिए उसके देखने पर भी निगाह नहीं चुराई थी। अंश ने सर झटक कर लैपटॉप टेबल पर रखा। गर्दन इधर उधर घुमाकर थकन दूर करनी चाहिए। उसका लड़कियों के करीब जाने का कहना अनस को एक आंख नहीं भाया था। उसने सोच लिया था लाइबा को कम से कम मुखातिब करेगा। वक्त उसके किरदार की गवाही दे देगा। वो आराम से लेटा और आंखों पर बाजू रखे सोने की कोशिश करने लगा। कितना दिल चाहता था कि वो लाइबा के बराबर में लेट कर उसे देखे, लेकिन लाइबा ने उसे अपनी मोहब्बत समझाने का कोई मौका ही कब दिया था। लाइबा भी सोचों में गुम सो गई थी। लाइबा के बाद ज़ैनब की शादी तय हो गई थी। ख़ानदान की आखिरी शादी थी, इसलिए सब ने खूब तैयारियां की हुई थी। लाइबा का सोच सोच कर बुरा हाल था कि शादी में सब लोग होंगे और उसकी तजलील नए सिरे से होगी। उसने सोच लिया था वो कोई बहाना बनाकर घर में ही रुक जाएगी। ज़ैनब अक्सर घर आती और लाइबा को लेकर शॉपिंग पर चली जाती। उसने लाइबा को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। वो अपनी भी शॉपिंग करके आई थी
शॉपिंग बैग्स उठाए वो कमरे में आई। अनस शर्टलेस खड़ा कोई शर्ट पहनने के लिए ढूंढ रहा था। लाइबा ने ध्यान नहीं दिया। बेड पर आकर उसने शॉपिंग बैग्स रखे और अलमारी की तरफ जाने लगी। अचानक उसका पाँव बेड के किनारे से टकराया और वो गिरने लगी। उसने गिरते गिरते अनस का कंधा थाम लिया। अनस ने जल्दी से लाइबा की कमर के गिर्द हिसार बांधकर उसे गिरने से बचाया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। लाइबा होश में आई और अंश को दूर किया। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो गुस्से से फिंकारी। ऐसे। वो दोबारा उसकी कमर में हाथ डाले बताने लगा। एक तो गिरने से बचाया, ऊपर से उसे ही ताव दिखा रही थी। छोड़ो मुझे। वो दूर करने की कोशिश करने लगी तो अंश ने छोड़ दिया और लाइबा जमीन पर गिर पड़ी। तुमने कहा था छोड़ दो। पहले भी तुमने मुझे पकड़ा था, फिर मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था। वो संजीदगी से कहकर उसे उठाए बिना चला गया। लाइबा लब भेंच कर रह गई। मनहूस ना हो तो, वो गुस्से से बोली और अलमारी में शॉपिंग बैग्स रखने लगी। अंस के घर में भी ज़ैनब की शादी की तैयारियां हो रही थी। अनस ने भी अपने कपड़े बनवाए थे और लाइबा के भी दे दिए थे। उसे मालूम नहीं था। ज़ैनब की माइयों पर सब तैयार होकर घर से निकले। अंस तैयार होकर रूम से बाहर आया। लाइबा सीढ़ियाँ उतर रही थी। ऊंची हील पहन रखी थी। उसने अंस को आगे जाते देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अच्छा मौका था अपना काम करने का। लाइबा ने जानबूझकर हील सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रखी और 7वीं सीढ़ी से सीधा नीचे गिरी। अनस चौंक कर पलटा और उसे देखकर जल्दी से उसकी जानिब लपका। लाइबा, लाइबा, लाइबा आंखें खोलो। वो उसके सर से खून निकलते देखकर फौरन अस्पताल भागा। उसने लाइबा को गोद में उठा रखा था। वो बेहोश थी। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और मरहम पट्टी के बाद उसे होश आ गया। अंस की जान लबों पर आ गई थी और वो कहता था वो लाइबा से नफरत करता है। ठीक हो? वो बेचैनी से उसका माथा देखते सवाल पूछ रहा था। लाइबा के दिल को कुछ हुआ। तुम गए नहीं मायों में? वो कैसे ऊट पटांग सवाल पूछ रही थी। तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाता? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की थी। बदले की शादी ऐसे ही चलती है अन साहब। वो उसकी आंखों में देखती बावर करा रही थी। इस शादी को बदले में तुमने बदला था लाइबा, वरना मैं मोहब्बत में पड़ने के बाद सीधा रिश्ता लेकर आया था। तुम्हारी नापसंदीदगी को भी यही समझा, बस गलत फहमी। और यूं ही है, लेकिन तुमने नफरत की है मुझसे। वो उसका हाथ थामकर खड़ा होते बोला। लाइबा को सब झूठ लगा। मोहब्बत? वो बस लड़की देखकर उसे पाने की चाह होगी। वो घर आ गए थे। अब तुम चले जाओ, अभी भी देर नहीं हुई। वो ये कहकर लेट गई। तुम्हारे पाँव में चोट आई है, वॉशरूम कैसे जाओगी? मैं यहीं ठीक हूँ, उसने नरमी से कहा और उस पर कंफर्टर डाल दिया। वो गहरी सांस लेकर तकलीफ में पड़ी रही। गिरा तो लिया था, अब मालूम हो रहा था चोटें कैसी लगी हैं। वो तकलीफ से कराही तो अनस पास आया। क्या हुआ? वो रो रही थी। मेरे पाँव और सर में दर्द हो रहा है, वो हल्की आवाज़ में बोली। दर्द से आवाज़ ही बंद हो गई थी। अंश परेशानी से उसका पाँव देखने लगा। उसने दर्द का स्प्रे किया, लेकिन सर दर्द के लिए उसने लाइबा का सर दबाया। वो आराम मिलने पर सो गई तो अंश भी उसके बराबर में लेट गया। न जाने कब उसे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। लाइबा दवा की वजह से नहीं उठी थी और अंश उसके ख्याल में जागता रहा। लाइबा की आंख खुली तो वो उसके सर पर ऊँग रहा था। लाइबा ने हैरत से उसे देखा। उसने कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे। न जाने कौन सा अनस सच्चा था, ये वाला या वो जिससे लाइबा नफरत करती थी। लाइबा बेड से उठने लगी तो अनस की आंख खुल गई। कहाँ जा रही हो? वो जल्दी से भागकर उस तक आया। वॉशरूम, उसने जवाब दिया तो अंश ने उसको सहारा दिया और बाथरूम तक पहुंचा दिया। बाहर खड़े रहकर इंतज़ार किया। वो बाहर आई तो बेड पर बिठाकर खुद फ्रेश होने चला गया। कपड़े तब्दील हुए तो उसे कुछ आराम मिला। लाइबा उसकी सुर्ख आंखें देखने लगी जो रात भर जागने की गुमाजी कर रही थी। लाइबा को वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। आज ऑफिस नहीं आ सकूंगा, बीवी बीमार है, उसने कहकर फ़ोन बंद किया और लाइबा के करीब आया। उसका बीवी कहना
इससे पहले अच्छा नहीं लगा था। क्या लोगी नाश्ते में? वो उसकी मेडिसिन निकालते हुए पूछ रहा था। लाइबा की निगाहें उसके चेहरे पर थीं। कुछ भी, उसने जवाब दिया तो वो सर हिलाकर बाहर निकल आया। वापस आया तो अंडा, डबल रोटी, जूस था। उसने अपने हाथों से इसे खिलाया। न जाने क्यों लाइबा को रोना आने लगा। आंसुओं को पीछे धकेल कर वो अंश के हाथों से नाश्ता करती रही। वो उसे नाश्ता करवाकर, मेडिसिन देकर, लिटाकर कमरे में रहा। मामी ने गुस्सा भी किया कि बीवी के पल्लू से लगा है। उसने इग्नोर कर दिया। अभी लाइबा की रिकवरी ज़रूरी थी। लाइबा बेड से उठकर बैठती, अंश फौरन तेज़ी से उसके करीब आ जाता। लाइबा इस केयर पर सब भुलाने लगी थी। औरत तो एक अच्छे अमल से पिघल जाती है, और अंश ने उसका चोट लगने से अब तक बहुत ख्याल रखा था। वो कैसे ना पिघलती। ज़ैनब उससे कॉल पर गुस्सा होती रही। उसने बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गई है। फिर वो फिक्रमंद हुई। उसकी शादी में जाने से जान छूट चुकी थी। मुझे मालूम है तुमने ये सब क्यों किया, अंश ने लाइबा को देखते हुए कहा तो लाइबा ने हैरानी से देखा कि उसने कैसे जान लिया। आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हें कुछ भी कहने वालों को जवाब मैं दूंगा। बताऊंगा कि कैसे तुम्हें हरैस करके शादी की है। वो ज़ब्त से बोला। उसे रह रहकर लाइबा की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। खुदा न ख्वास्ता उसकी जान भी जा सकती थी इन सब में। मेरे पास यही एक तरीका था, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। मेरे पास सच बताने के बहुत तरीके हैं, वो नरमी से बोला। शाम में उसकी कोलीग और यूनिवर्सिटी के दोस्त आ रहे थे। लाइबा कमरे में थी। लड़कियां उससे मिलने ऊपर आ गई। हम अंश के फ्रेंड्स, लाइबा ने सुनकर लब भेजे। अब वो घर तक आ गई थी। लकी हो बहुत, अंश जैसा मर्द मिला तुम्हें, कुछ लड़कियां हसरत से कह रही थी। लाइबा ने सोचा, खाक लकी, 36 लकी लड़कियां दिल में हैं इसके। हम जब भी किसी मसले में होते थे अनस से मिलकर कहते थे और वो हल कर देता था। हम सबकी ख्वाहिश थी अनस हम में से किसी से शादी करे, लेकिन वो कहता था वो कुछ अलग और ख़ास होगी जिसे देखकर दिल धड़केगा। सारी लड़कियां लाइबा को छेड़ रही थी और वो हैरत ज़दा रह गई। कैसी मदद करता था अनस? वो हैरानी से पूछने लगी। मतलब हम बॉयफ्रेंड्स बनाते थे और फिर वो हमें ब्लैकमेल करने लगते थे। हम अनस से कहते तो वो उन्हें सबक सिखाकर हमारी ज़िंदगी से दूर कर देता। वो हंस रही थी। लाइबा की सांस रुकने लगी। वो इस वजह से लड़कियों से मिलता था। सबके साथ कोई ना कोई मसला था और वो उसे हल करता था। वो सब डिटेल में उसे मसले और हल बताकर चली गई और बस लाइबा का दिल किया खुद के साथ क्या ही कर डाले। वो डिनर लेकर कमरे में आया तो लाइबा छत को देख रही थी। अनस ने बेड पर बीच में ट्रे रखी। तुमने दोपहर में भी खाना नहीं खाया, मेड ने बताया है मुझे। वो उसे खफकी से देख रहा था। चलो उठो। वो उसे सहारा देकर उठाने लगा। लाइबा की आंखों में आंसू चमकने लगे। मुंह खोलो, वो उसके मुंह बंद को देखकर बोला तो लाइबा चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी। अरे अरे क्या हुआ? क्या सख्ती से बोल दिया? वो हैरानी से नवाला प्लेट में रखकर उसकी जानिब आया। आई एम सॉरी, वो हाथ हटाए बिना बोली। किस लिए? वो हैरान हो रहा था कि लाइबा और उससे सॉरी। मैंने तुम्हें गलत समझा, यही समझती थी कि लड़कियों से इश्क लड़ाने का शौक़ है। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। लड़कियों से नहीं, सिर्फ एक लड़की से है। वो हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। यार तुमसे पहली और आखिरी दफ़ा इश्क लड़ाया है। देखो कैसा फंसा हूं ना इधर का रहा ना किसी और लड़की का। वो बेबसी से बोला। लाइबा ने तकिया उठाकर उसे मारा। वैसे ये बहुत बुरी बात है लाइबा, तुमने मुझे जाने बिना मेरे करैक्टर को जज कर लिया। मैं मामा से कह रहा था लाइबा को मुझे समझने का मौका दे ताकि वो रिश्ते पर इनकार ना कर सके। और मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। किसी और को तुम्हें देखने का तसव्वुर ही इतना गहरा था कि दम घुटने लगता था। वो ट्रे पर निगाहें लिए बोला, सॉरी अनस। वो वाकई शर्मिंदा थी। चलो सॉरी वगैरह छोड़ो, खाना खाओ, मेडिसिन देनी है। वो उसके आंसू साफ करके नवाला बनाने लगा। वो मुस्कुराकर उसकी उंगलियां काट कर खाने लगी और वो उसकी शरारत पर मुस्कुरा रहा था। लाइबा की सेहत ठीक होते ही उसने वलीमा रख लिया।
लाइबा ने घर जाकर सबसे माफ़ी मांगी और बताया कि उसने लाइबा को मजबूर किया था कि रिश्ते से इनकार करके उससे शादी करे। उन्होंने पहले गुस्सा किया, फिर मान गए। वलीमे में सबने शिरकत की थी और अनस ने भरे मजमे में माइक लेकर अपनी गलती का एतराफ़ करके लाइबा से माफ़ी मांगी थी। लाइबा को यकीन था वो जिससे शादी करने जा रही थी वो इतने बड़े दिल गुर्दे का मालिक नहीं होगा जितना अनस था, अपनी गलती का एतराफ़ करने वाला और लाइबा का गुस्सा झेलने वाला। वरना उसके पास हक था, लाइबा उसकी बीवी है, इस्तेमाल कर लेता। उसने लाइबा को मौका दिया, वक्त दिया, और जिसकी वजह से आज लाइबा के दिल में उसके लिए मोहब्बत, इज़्ज़त और गहरा एतमाद कायम हो गया था। वो जितना शुक्र अदा करती कम था। खूबसूरत लग रही हो, वो कान में सरगोशी कर रहा था। ज़ैनब अपने मियाँ के साथ घूमती फिरती बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। लाइबा ने मुस्कुराकर उसे देखा। और तुम लफंगे लग रहे हो जो अपनी बीवी को छेड़ रहा है, वो मुंह बनाते हुए बोली तो अनस का कहकहा बेसाख्ता था। आज की रात तैयार रहना, ये लफंगा बहुत कुछ बताने का इरादा रखता है। वो मुस्कुराते हुए बोला तो लाइबा के कान सुर्ख हुए, नजरें झुक सी गई। अनस ने दिलकश मंजर दिलचस्पी से देखा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।